Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aziza Munir, and today we'll be discussing sampling and sampling distributions in order to make the statistical inferences. Now, in today's lecture, we'll be talking about that why we need to collect a sample. What is the importance and what is the domain, or what is the, you can say, the chances of sampling distribution to be selected, to be analyzed in the statistical environment. इसकी क्या importance हो सकती है, इसमें कौन-कौन से elements शामिल होने चाहिए, in which particular environment actually we use sampling. अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, हमने टाइम सीरीज एनालिसिस भी इवेल्युएट करके देख लिया कि कौन सी इन्वायरमेंट्स के ऊपर टाइम सीरीज अप्लाई होता है, तो सैम्पलिंग, व्हाट इज़ द रोल एंड पर्पस ऑफ the sampling and sampling distribution and the statistical inferences, and once we are drawing certain kinds of conclusions towards our data, why we need to collect a sample. Well, we'll be talking about in that perspective. Secondly, what are the methods and techniques involved in sampling, and what are the sampling methodologies which are already there, which are made by the statisticians, and which are used in the data interpretations, particularly in the field of making inferences. Then we'll be talking about that what are the possible and types of probability and non-probability samples, what are actually the probability samples and what are the non-probability samples, in which category of applications they are lying, and which type of results do they show, and which type of occurrences are there in the events on the basis of what we use to select the probability and non-probability samples. Then we'll be talking about the methods, that how we can calculate the probability and non-probability sample, as there exists a number of methodologies in probability and non-probability sampling. Then what are the methods of their calculations, we'll be touching them as well. So first of all, sample and population. Now, starting from the scratch, taking a very simple idea, very simple concept in mind, that once we want to take some information from a set of population, for example, if we want to take information that how many students like Nokia cell phones studying in ComStats Institute of Information Technology, Islamabad campus. So that involves a number of students which are lying in the Islamabad campus, which might belong to multiple departments, and it's very difficult, and it's really impossible that you are talking about each and every individual, each and every student and their interest in the specific mobile phone set or in specific services of the service providers of like Mobilink and Ufone, whatever. So in order to analyze the general return, in order to analyze the general trend, that which type of students are in which department particularly the students like this connection or this particular cell phone. So for this you used to take a sample. Now this sample taking is a very difficult, not as such difficult, but it's a tactful art, that on which basis, on which grounds actually you are taking a sample. Because if you're not reading the entire population, then you have to take the inferences, then you have to manage the results on the basis of the sample. So you have to collect the sample, you have to take the sample on very artistic grounds, so that the overall results can draw the right inferences towards the statistical methodologies. So a population is a whole, out of which once you are collecting a sample, it becomes the subset, meaning the sample is a subset of the population. For example, if a cook is cooking food, so it's not possible that, or it's not merely good sign that in order to draw an inference that whether the quantity of salt and pepper is right in the food, he will be tasting the entire quantity whatever he is cooking. No, it's not the case, but he'll be just taking a spoonful out from the cooking material and taste it.
and from that material he can draw an inference, he can draw a judgment that the quantity of salt and pepper is accurate in the food which he is cooking. So a sample, the spoon which he has taken full of is a sample actually from the entire population of the food. So a population is the collection of all the elements of interest, that whatever the side of area or whatever the desirable study we are about to conduct, every possible individual will be a part of that study who is having the similar characteristics. अगर हमने students को study करना है, तो students who are for example above the age of 23 will be, or 20 will be, yeah, all engineering students of Pakistan will be the entire population set. Yeah, all management students of Pakistan will be the population set. Yeah, all management students of private universities or of public universities will be a population. So whatever is the population, it will be drawing, it will be describing the similar set of characteristics amongst each other. And this is the collection of all the possible elements of interest. What actually sample if a sample is, अगर हमें population का concept clear है कि population is the combination of all possible elements of a similar interest, of similar characteristics, तो फिर sample क्या होगा? Sample is a subset of population, as simple as that. It's just a part of the population. It can be a good sample, it can be a bad sample. अगर तो sample population characteristics को बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहा है, meaning if the sample characteristics are equivalent to the population characteristic, then we can say that it's a good sample. But if it is not entertaining the similar purposes, if it is not entertaining the similar characteristics, then it is not considered a good sample. Representatives of or non-representative samples, a researcher hopes to obtain a sample that represents the population at least in the variable of interest for the issue being examined. अगर हम जो चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं वो सैम्पल्स में से स्टडी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने ये स्टडी किया है कि स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और हमने स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान में से वो स्टूडेंट्स उठा लिए जो कि बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं और उनके पास शायद मोबाइल है ही नहीं, और अगर उनके पास है भी तो वो उसका बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, तो हम उसको वो जो सैंपल हमने पिक कर लिया है वो हमें पॉपुलेशन के राइट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा. अगर वो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये है कि वो हमें राइट इंटरप्रिटेशन शो नहीं कर रहा. इसलिए जो सैंपल है इट हैज़ टू बी द राइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, so that the variables of which we are about to examine should be of right moderation, वो बिल्कुल सही टेक्निक के साथ और बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन के साथ मॉनिटर हो जाए. Then we talk about the probabilistic samples, which are the samples selected using the principles of probability. Probabilistic samples वो samples होते हैं जिनको हम इवेल्युएट करते हैं प्रोबेबिलिटी की ग्राउंड्स के ऊपर, या हम प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर एनालाइज करते हैं, या हम चूज और पिक करते हैं प्रोबेबिलिटी के ग्राउंड्स के ऊपर कि अगर हमारे पास ये पॉपुलेशन है तो हर पॉपुलेशन का जो एलिमेंट है इट विल बी एंजॉयिंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. अगर हर पॉपुलेशन के एलिमेंट के पास एक इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का तो इसका मतलब है कि हम उसको प्रोबेबिलिटी सैंपल के केस में एनालाइज कर रहे हैं. This may allow a researcher to determine the sampling distribution of a sample statistic. अब sample statistic क्या होता है ये भी हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो probability samples की टेक्निक है उससे जो रिसर्चर है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज कर लेता है कि हाउ फार व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल लाइंग इन द पॉपुलेशन. तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को टच करेंगे. अभी हम जनरली बात कर रहे हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है और स्टैट्स में या इन ऑर्डर टू ड्रॉ इन्फरेंसेस इसका क्या रोल है. If so, the researcher can determine the probability of any given sampling error and make statistical inferences about population characteristics. तो उस केस में हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो probabilistic samples की है, या वो samples हैं जो कि हम डिटरमिन करते हैं ऑन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन के ऊपर. हाँ, इसमें सैम्पलिंग एरर हो सकता है. इसमें अगर आप एक वर्ड के ऊपर आई वुड लाइक यू टू पे योर अटेंशन ऑन वन वर्ड विच इज द सैम्पलिंग एरर. नाउ इन सैम्पलिंग एरर ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें जब हम सैंपल चूज करते हैं तो डेफिनेटली इसमें एरर का मार्जिन होता है.
एरर किस किस्म का हो सकता है कि जो भी पॉपुलेशन हमने एंटिसिपेट की थी कि इस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल उठाना है, हो सकता है कि हमारा जो सैंपल है वो उसके इक्वल नंबर को या इतना नंबर हमने सिलेक्ट नहीं किया, नंबर ऑफ सैंपल जो है जैसे सैंपल साइज वो इतना नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन को एग्जॉस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हमने इनकम पैटर्न ऑफ पाकिस्तान स्टडी करना है और हम सिर्फ इस्लामाबाद के 200 लोगों को स्टडी कर लें, तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल हमने पिक किया है वो राइटली एक तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को, और दूसरा ये कि जो साइज है सैंपल का वो बहुत छोटा है। पूरे पाकिस्तान में जो अर्निंग हेड्स है हमारे पास वो तो बेशुमार है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दे आर इन मिलियंस, और अगर हम उनमें से सिर्फ 200 लोगों का सैंपल लेते हैं वो भी किसी स्पेसिफिक एरिया से, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में सैंपल एरर का मार्जिन है। तो हम उस एरर मार्जिन को भी समटाइम्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग अ सैंपल? अगर हमारे पास पॉपुलेशन एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है तो हम सारी के सारे इन्फ्रेंसेस या सारे के सारा डेटा जो है वो पॉपुलेशन से क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते हैं, हम सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। पहली चीज ये कि टाइम ऑफ रिसर्चर एंड दोज बीइंग सर्वेड इज वेरी लिमिटेड। हमारे पास रिसर्च के लिए इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी पॉपुलेशन को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें। इस वजह से टाइम कंस्ट्रेंट की बेसिस के ऊपर, लिमिटेशन की बेसिस के ऊपर, वक्त की कमी की बायस हम सैम्पलिंग जो है वो अडॉप्ट करते हैं, सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है वो हमें पॉपुलेशन के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो ऑफ कर दे। सेकेंडली कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। अगर हमारे पास टाइम लिमिट है तो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की लिमिट भी है, वो है कॉस्ट, कि हमारे पास इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें। इवन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट भी जब सेंसस कराती है तो उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इंटीग्रेट होने चाहिए। इसी वजह से हर 5 साल से पहले सेंसस नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि उसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर आप पूरे की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उस केस में डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आएंगे वो तो बहुत एक्यूरेट होंगे, लेकिन उस पर आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लग जाएगी और उस पर आपका बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। सेकेंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी या एनोनिमिटी। इस केस में समटाइम्स जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है वो हमारे पास 100% पॉपुलेशन का रिजल्ट्स शो नहीं होते, इसलिए क्योंकि कुछ लोग अपनी इंफॉर्मेशन देने से घबराते हैं, या कुछ लोग अपने इंटरेस्ट्स को शो नहीं करना चाहते, या कुछ लोग बात करने से थोड़ा सा हेसिटेंट होते हैं। तो इस वजह से जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या जो इंटरप्रिटेशन है वो राइटली एनालाइज नहीं हो सकेंगी। तो उस केस में कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं या कुछ एम्बिग्विटीज आ जाती है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम सैम्पलिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर सोल्यूशन है इंस्टेड कि हम पॉपुलेशन को स्टडी करें। Then there is non-interference with population. हम यूजुअली पॉपुलेशन को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले सकते। हर इंडिविजुअल जो है वो हमसे बात इस तरह से नहीं करेगा कि हम उससे उसकी ओपिनियन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टोर को ही विजिट करते हैं, एक शॉपिंग मॉल को विजिट करते हैं और शॉपिंग मॉल में आप चाह रहे हैं कि आप मालूम करें कि कितने लोग सर्फ एक्सेल खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, और जो भी बंदा आपको सर्फ एक्सेल खरीदता हुआ नजर आता है आप उसके पास जाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि आप क्यों सर्फ एक्सेल खरीद रहे हैं। तो अगर आपने एक दिन में 50 लोगों को स्टडी किया है तो अनडाउटेडली आपके पास 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि they are having an ambiguity in their mind, they are a bit hesitant that whatever the information they are providing to us will not remain confidential, or it's not that useful to describe our opinion to them. तो इस वजह से usually लोग अपनी information या अपनी opinion जो है वो एक particular action के ऊपर या एक particular interest show करने के ऊपर देना पसंद नहीं करते। Then there is do not destroy population. For example, crash test only small sample of automobiles. Do not destroy population का मतलब ये है कि sometimes जब हम सैम्पलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने लाइट बल्ब्स को स्टडी करना है और एक पैक के अंदर हमने
वो लाइट बल्ब स्टडी करने हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, या जो लाइटेबल है, या ऐसे बल्ब जो कि जल सकते हैं, उनको हमने मालूम करना है कि इस इन सेट ऑफ बॉक्सेस के अंदर कितने बल्ब जो है वो ठीक है। तो हम एक सैंपल ड्रॉ करेंगे और उसको हम चेक करेंगे। लेकिन हो सकता है कि जब हम सैम्पलिंग कर रहे हो तो हमारे पास कुछ बल्ब जो है वो टूट जाए, या वो ख़राब हो जाए, या हमारी मिस हैंडलिंग से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाए। सिमिलरली अगर हमने फूड कैंस को स्टडी करना है कि कितने फूड कैंस जो है वो बिल्कुल राइट क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो उनके अंदर मौजूद है, और वो पेरिश्ड नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है, तो उस केस में अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो हमें उस कैन को ओपन करना पड़ेगा, और जब हम कैन ओपन कर लेंगे तो उसका मतलब है कि वो यूजलेस हो गया है। तो इसलिए जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सेकेंडली देन वी हैव टू टेक कॉर्पोरेशन फ्रॉम दी रिस्पोंडेंट्स। हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे हमें कॉर्पोरेशन की ज़रूरत होती है। जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे वो इंडिविजुअल्स भी हो सकती हैं, वो फर्म्स भी हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज भी हो सकती हैं, वो जनरल पब्लिक भी हो सकती है, वो किड्स या हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं, या वो वर्किंग और नॉन वर्किंग वुमेन भी हो सकती है। वट एवर इज दी एरिया ऑफ स्टडी, वट एवर इज द सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स, हमें उनसे कॉपरेट करना चाहिए। Then there is partial data is all that is available. For example, fossils and historical records, climate changes. हर एरिया जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें partial data जो है वो अवेलेबल होता है। उसके अंदर जो एक्सटेंशन करनी होती है वो हम थ्रू सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो partial data set जो है that is always available to us. Now we can टॉक अबाउट, अगर हमें ये पता लग गया है कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, सैंपल्स हम क्यों ड्रॉ करते हैं एक पॉपुलेशन में से, तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि कितने टाइप्स हो सकते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम सैंपल्स ड्रॉ करते हैं। So there basically exists two methods of drawing sample. One is the probability sample and second is the non-probability sample. In non-probability sample, we take family, friends, neighbors and acquaintances. जो भी हमें ज़्यादा conveniently हमें लोग मिल जाते हैं, हम उनसे information ले लेते हैं। मीनिंग फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने नेबर से, उन लोगों से जिनका हमारे साथ बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है, उनसे हम बहुत आराम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज नॉट कमिंग अंडर द प्रोबेबिलिटी रूल्स। तो इसका मतलब है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, या हमने कन्वीनियंस की बेसिस के ऊपर सैम्पलिंग की है। लाइक स्टूडेंट्स इन अ क्लास और को वर्कर्स एट प्लेस, जो भी हम जिन लोगों के साथ हम काम करें, 4-6 सवाल उनसे पूछ के डेटा कलेक्ट कर लो और उन लोगों को सिलेक्ट कर लो अपना सैंपल, तो वो भी एक कन्वीनियंस बेस्ड सैंपल होगा। देन वॉलंटियर्स, हम जनरल पब्लिक के पास जाकर वॉलंटियर्स पिक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को या इस पर्टिकुलर स्टडी में कौन लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, और जो लोग विलिंगली शामिल होना चाहते हैं हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो वॉलंटरली हम कुछ लोगों को अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं, अपने साथ इनक्लोज कर लेते हैं, अपने साथ टाई कर लेते हैं, जिनको हमने स्टडी करना है। लेकिन इसके पीछे कोई एक साउंड रीजन नहीं है कि वाई दीज पीपल ओनली, or what are the characteristics of these people, and because of this we have selected them. So ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द टेक्निक इस जिसके अंदर हम रेफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टडी करना है कंप्यूटर वेंडर्स को, कंप्यूटर वेंडर्स इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, तो हमारे पास अगर कंप्यूटर वेंडर्स के या उनके एड्रेसेस और उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं है सिवाय चंद एक के, तो हम पहले वेंडर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि जी आप हमें रिकमेंड कर दें कि हम कौन से 2 या 3 और लोगों के पास जाएं जो हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो हमें 2-3 लोगों के कार्ड्स प्रोवाइड कर देंगे, या उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स दे देंगे, या उनके कनेक्शंस प्रोवाइड कर देंगे, या हमारा रेफरेंस उनको दे देंगे कि कुछ लोग आएंगे आपसे इस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इस तरह से एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। एक बंदे को अप्रोच करके 2 और कनेक्शंस मिल जाएंगे, उन दोनों के पास हम जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जी 2-3 और लोगों के कनेक्शंस दे दें, और वो हमें 2-3 और लोगों के रेफरेंसेस देंगे जिनके पास हम जाकर वही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो दैट इज अ स्नोबॉल मेथड दैट विद एवरी cycle, with every visit we are having an increased number of references from the previous one. तो उस केस में हम एक जो टेक्निक यूज करते हैं, अगेन दिस इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ सिलेक्शन, ये कोई बहुत
साउंड मैकेनिज्म नहीं है कलेक्ट करने का। हो सकता है जो रेफरेंसेस उसने हमें दिए हैं वो बहुत एक्यूरेट ना हो, या वो राइट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड ना कर रहे हो, या इसके अंदर एरर मार्जिन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जनरली स्पीकिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर स्नोबॉल मेथड भी यूज होता है, जो कि हमारी पर्सनल कन्वीनियंस की या पर्सनल रेफरेंसेस की बेसिस के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। Similarly, the judgment sample. The judgment sample is the one जिसमें हम अपनी मर्जी से जज करते हैं कि जी इस पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल हम अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि कितने लोग या कौन से बैंक्स जो है वो हमें बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल बैंक या एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो हमने अपनी पर्सनल जजमेंट की बेसिस के ऊपर या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिए 3 बैंक्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक हम सिटी बैंक उठा लेते हैं, एक हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड ले लेते हैं, और एक हम कोई भी और एक और इंटरनेशनल बैंक, फॉर एग्जांपल हम हबीब बैंक ले लेते हैं या बैंक अल हबीब ले लेते हैं। अब हम बैंक अल हबीब भी एक प्राइवेट बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी एक प्राइवेट बैंक है, और सिटी बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है, और हमने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने पर्सनल जजमेंट की बेसिस के ऊपर इन बैंक्स को सिलेक्ट किया है, और उनकी सिलेक्शन के बाद फिर हम उसमें से सैंपल्स ड्रॉ करेंगे और उनके एरियाज को स्टडी करेंगे। Then comes the quota sample. In quota sample, we obtain a cross section of a population. For example, by age or by sex of individuals, or by region or firm size and industry for businessmen. This may be reasonably representative. कोटा के केस में हम खुद से एलोकेट कर देते हैं कि जी हमारी ये स्टडी जो भी है उसमें हम इतनी परसेंट इतने लोगों को एज की बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे, इतने लोगों को जेंडर की बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे, इतने लोगों को मैरिटल स्टेटस की बेसिस पे स्टडी करेंगे, इतने लोगों को उनके ऑक्यूपेशन की बेसिस पे स्टडी करेंगे। तो हमने मुख्तलिफ कोटाज असाइन कर दिए कि इतने परसेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एज की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, और इतने परसेंट जो स्टडी कर रहे हैं वो इस लोकेलिटी में से कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में से कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल ड्रॉ करना है, तो हम एक कोटा साइन कर देंगे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को 10% में से 10% लोगों को सिलेक्ट करना है, कॉमर्स में से 20% लोगों को सिलेक्ट करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में से 30% लोगों को सिलेक्ट करना है, कराची यूनिवर्सिटी में से, सिंध यूनिवर्सिटी में से हमें 25% लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हमने हर यूनिवर्सिटी में से जितने लोगों को सिलेक्ट करना है उनको हमने एक कोटा साइन कर दिया है कि इस कोटा के अगेंस्ट ही हमने सिलेक्शन करनी है, और वो जो भी सिलेक्टेड सैंपल होगा, जो भी सिलेक्टेड लोग होंगे उनके ऊपर फिर हम अपनी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। Sampling distribution of statistics cannot be obtained using any of the above methods, so statistical inferences is not possible. ये जो हमने डेटा टेक्निक्स यूज की है, कोटा सैम्पलिंग के ऊपर हमने बात की, हमने जजमेंट सैम्पलिंग पे बात की, स्नोबॉल टेक्निक पे बात की, या कन्वीनियंस के ऊपर बात की। ये जो मेथड्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज नहीं निकाल सकते। We are not sure that with which frequency a data is being lying in the particular एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर किस फ्रीक्वेंसी से एक इवेंट ऑकर हो रहा है, हम इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत साउंड स्टैटिस्टिकल ग्राउंड के ऊपर डेटा कलेक्शन नहीं हुई हुई है। एक तो एक नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के ऊपर सैम्पलिंग हुई हुई है, और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड वो मेथड है जिसमें हमने अपनी कन्वीनियंस, अपनी जजमेंट, अपने असाइंड कोटा या अपनी रेफरेंसेस के अगेंस्ट लोगों को कॉन्टेक्ट करके तो डेटा कलेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एरर का, इसलिए क्योंकि इसमें हमारी पर्सनल या रिसर्चर की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा शामिल होती है। लेकिन जो और इस पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम यहाँ से सैम्पलिंग के ऊपर तो बात कर सकते हैं, सैम्पल में भी बात कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट नहीं कर सकते। हम यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर इवेंट एक एक्सपेरिमेंट में कितनी दफ़ा ऑकर हुआ है, राइट। अगर हमने हमने अगर ये डिस्कस करना है कि इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स, तो उसका जो आउटकम है, वो जो भी आउटकम है, उससे हमें एक फ्रिक्वेंसी पता लग जाती है कि कितने टाइम्स हेड अपीयर होगा और कितने टाइम्स टेल अपीयर होगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकली एक्सेप्टेड मॉडल के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है।
लेकिन ये जो मेथड्स हमने अभी जिनके ऊपर बात की है, नॉन प्रोबेबिलिटी जो मेथड्स हैं, इसके अंदर कोई भी मेथड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को फॉलो नहीं करता। अगर वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को फॉलो नहीं करता तो उसमें एक मेजर लिमिटेशन ये आती है कि उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई नहीं कर सकते, उसके फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज नहीं कर सकते, और हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। The second part of the sampling or the sample collection is a probability sample. Now, in probability sample, there exist multiple techniques, which are first of all the random sampling methods. In random sampling technique, we usually assign an equal number of chance, an equal number of you can say an opportunity, which is being assigned to every single population element. हम हर एलिमेंट को जो कि एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है इक्वल नंबर ऑफ या इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक क्लासरूम से अगर हमने एक बच्चे को सिलेक्ट करना है और उससे पूछना है कि टीचर आपको ठीक पढ़ाती है या नहीं ठीक पढ़ाती, तो जितने भी बच्चे हैं उन सब के पास एक इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है। हम रैंडमली किसी भी बच्चे को जाकर खड़ा कर लेंगे और उससे पूछेंगे कि टीचर आपको जो पढ़ा रही है समझ में आता है या नहीं समझ में आता। लाजमी नहीं है कि हमने सिर्फ लाइक बच्चों से पूछना है, या लाजमी नहीं है हमने सिर्फ फ्रंट रो से पूछना है, या लाजमी नहीं है हमने सिर्फ एंड रो से पूछना है, या कोई एक पैटर्न हमने आइडेंटिफाई नहीं किया जिसके ऊपर हमने जिसकी बेसिस के ऊपर हमने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। हमने एक रैंडम एनालिसिस किया है कि वी आर गोइंग टू अ क्लासरूम एंड वी आर रैंडमली सिलेक्टिंग एन इंडिविजुअल, बट ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल सिटिंग इन दिस क्लासरूम विल बी हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड as that student who has been providing us with the response. तो हर स्टूडेंट के पास इक्वल चांस है, चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है। Secondly is the systematic sampling technique. इन सिस्टमेटिक सैंपल हमारे पास जो भी डेटा सेट होता है उसको हम एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम 6 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट शो करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 5 8 9 11 13 14। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेकेंड जो 2 अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम सेकंड जो नंबर है या जो 2 नंबर है उसको हम के वैल्यू असाइन कर देते हैं और हम कहते हैं कि एवरी केथ टर्म हम सिलेक्ट करेंगे। हमने सेकंड नंबर पे किया, या हम सारी इवन ऑब्जर्वेशन की बात अगर करें तो हमने सेकंड नंबर पे किया, 4th नंबर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है वो पिक की, 6th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो पिक की, और जो 3 नंबर हमारे पास आए हैं ये एक सिस्टमैटिक मेथड है सैम्पलिंग का कि हमने हर इवन नंबर के ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन अपीयर हो रही है उसको सिलेक्ट करना है। Equivalent to random if patterns in list are unrelated to issue of interest. For example, telephone book. अगर जितने भी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इंटरेस्ट है पॉपुलेशन के वो इक्विवेलेंट नहीं है, वो वेरी कर सकते हैं। अगर वो वेरी कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन तो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेलीफोन डायरेक्टरी की बात करते हैं तो टेलीफोन डायरेक्टरी में हर नंबर जो है वो एक डिफरेंट फैमिली को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। अब वहाँ से अगर हम एक सैंपल पिक करते हैं या टेलीफोन नंबर्स की बेसिस के ऊपर अगर हम एक सैंपल पिक करें तो हमारे पास कोई एक सच टेक्निक डिस्क्राइब नहीं होती रैंडम सैंपल में कि हम खामखा एक नंबर उठाएं और उसको पिक कर लें, और वी कैन नॉट असाइन इक्वल नंबर ऑफ chance to be selected to every telephone number appearing in the telephone directory। तो हम वहाँ पर systematic sample कर लेते हैं कि every 15th number हमने select करना है, कि every 15th जो contact number हमारे पास लिखा हुआ है directory में वो हम pick करेंगे और उसका जो 200 times हम यही वाला experiment repeat करेंगे, तो जो 200 हमारे पास लोगों का numbers का जो sample बनेगा हम उसके ऊपर अपने study conduct करेंगे। तो that is another way of collecting probability sample. Then comes the stratified samples. In stratified samples, we create a subgroup of population या हम एक stratum बना लेते हैं। अब stratum क्या होता है कि अगर हमने पूरे पाकिस्तान में से कोई एक स्टडी कंडक्ट करनी है कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का क्या ट्रेंड है, तो हम पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटम्स में डिवाइड कर लेंगे। एक स्ट्रेटम हम बना लेंगे पंजाब का, एक हम बना लेंगे अपर सिंध का या अपर कराची वाले जो एरिया वहाँ का, एक मेन कराची का,
एक बलूचिस्तान का, एक फाटा का, एक पेशावर का, मुख्तलिफ एरियाज में हमने, मुख्तलिफ स्ट्रेटम्स में हमने डिवाइड कर लिया है अपनी पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि जिन एरियाज में पॉपुलेशन डेंस है और जिन एरियाज में पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है उन एरियाज को की बेसिस के ऊपर हमने एक स्ट्रेटम बना लिया है और हर स्ट्रेटम में इक्वल नंबर ऑफ पीपल एग्जिस्ट करेंगे। अब जब हम उसको सब ग्रुप को स्टडी करेंगे, उसमें से हम एक ग्रुप उठा लेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे अपने, तो वो हम बेसिकली किसी सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे, वो हम बेसिकली किसी रैंडम मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि हमने हर पॉपुलेशन के हर पॉपुलेशन को हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और वो जो सब ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के वो हमने आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड साइज ऑफ द firm or size of the area, size of the you can say the region। तो उस केस में हमारे पास जो डेटा आएगा वो हम उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। इस तरह से जो सैम्पलिंग टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। Then comes the cluster samples. Cluster sample is another method of probability sample collection technique, which is sample only certain clusters of members of population, like city blocks or firms. अगर हमने क्लस्टर की बात की है तो क्लस्टर में और स्ट्रेटिफाइड में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रेटिफाइड में हम हर स्ट्रेटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को शामिल करते हैं, लेकिन जब हमने क्लस्टर की बात की है तो हम उसमें कुछ एरियाज को सिलेक्ट करेंगे और कुछ एरियाज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ उन फर्म्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी जो रेवेन्यूज हैं वो हमें एक साल में 20% इंक्रीज के ऊपर नजर आ रहे हैं। All those firms who are maintaining 20% increase in their sales in every year will be selected in the cluster। तो अब उसके अंदर हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी है उस क्लस्टर में और उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ फर्म्स निगेट हो जाएंगी और कुछ फर्म्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास इक्वल चांस तो नहीं है हर फर्म के सिलेक्ट होने का, लेकिन हमारे पास जो क्लस्टर बना है वो हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बताएगा या एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल्स शो कर रहा होगा जिसकी बेसिस के ऊपर हम राइट स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। There is the multi-stage sample, which is the combination of the given sets। अगर बेसिकली हमारे पास ये चार एरियाज एग्जिस्ट करते हैं रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, which are random sampling technique, systematic, stratified and cluster। इन चार टेक्निक्स की बेसिस के ऊपर हम सैम्पलिंग विड्रॉ करते हैं, सैंपल्स लेते हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर। अब अगर हम इन दोनों में से, इन सारों में से कुछ कॉम्बिनेशंस बना लें, मतलब अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है जिसमें 50% डेटा जो है वो हमने रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर की मेथड के ऊपर कलेक्ट किया और 50% हमने स्ट्रेटिफाइड की बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये हमने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की है। या हम ये कहते हैं कि हमने इनिशियली जो डेटा कलेक्ट किया है वो रैंडम बेस्ड किया है और उसके बाद हमने उसके क्लस्टर्स बना लिए या उसके स्ट्रेटास बना लिए। तो इस तरह से हमने एक्चुअली दो सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो फॉलो की है और ये दोनों जो है वो प्रोबेबिलिटी थी। ये नहीं होगा कि हम स्नोबॉल मेथड यूज करेंगे और उसके बाद हम रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे, नो, दिस विल नॉट बी द केस। अगर हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पल पे हम जो चार मेथड स्टडी किए हैं उन्हीं में से कोई से दो मॉडल्स या तीन मॉडल्स हम मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर अपनी रिसर्च की अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि हो सकता है कि हमने अपने डेटा को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करना हो और उस एक्सटेंशन के अंदर हम सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर इतनी अच्छी इन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते या सिर्फ क्लस्टर के ऊपर हम बहुत अच्छी इन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते, या हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो सिर्फ रैंडम की बेसिस के ऊपर या सिर्फ सिस्टमैटिक की बेसिस के ऊपर हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हम इनिशियली एक मेथड अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास मेथड चेंज हो जाता है, जो हमारा मेथड बन जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपल, वो मल्टी स्टेज सैंपल बन जाता है एक्चुअली, राइट। If probability involves at each stage, then distribution of sample statistic can be obtained। अगर हमने हर स्टेज के अंदर probability को
डिस्क्राइब किया है, प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व किया है, तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकता है, जिस तरह हम जिसपे हम डेटा को मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये एक वो एग्जाम्पल है जो आपको ग्राफिकली एनालाइज करा रही है कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं क्लस्टर सैंपल्स की टेक्निक। ये एक मैप है इकोनॉमिक रीजन्स का, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में यूज हुई हुई है और एक मंथली लेबर फोर्स को शो कर रही है। और सोर्स है इसका स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा कैटलॉग, और यहाँ से हमने ये एक ग्राफ उठाया है। Clusters and individuals are selected from each of the 5 southern economic regions. जो हमने क्लस्टर्स ड्रॉ किए हैं वो हमने स्पेसिफिक रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से ड्रॉ किए हैं। और इन एडिशन द 2 CMAs ऑफ रीजना एंड सैस्कटून और स्ट्रैटास। तो ये हमने जो स्ट्रैटास बनाए हैं, ये एक है सैस्कटून रीजन के ऊपर और दूसरा है रीजना के ऊपर, और 2 स्ट्रैटास को हमने बनाकर तो स्टडी किया है। हमने 2 स्ट्रैटास बनाए हैं, एक ये आपको शो हो रहा होगा लाइंस में, बार्स में या शेडेड एरिया के फॉर्म में, और एक आपको ब्लैंक शो हो रहा होगा जो कि एक्सटेंशन है हमारे स्ट्रैटास की, और इन बेसिस के ऊपर हमने कलेक्शन की है। और ये जो आपको बोल्ड सी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, बोल्ड सी डिवीजन नजर आ रही है, ये एक्चुअली स्ट्रैटास है जिसको हमने एनालाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मुख्तलिफ क्लस्टर बेस्ड रिजल्ट्स नजर आते हैं। इस एग्जाम्पल से जो हमने अभी प्रीवियसली ग्राफिकली एनालाइज की है, उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो यूजुअली बहुत बड़े एरिया के ऊपर की जाती है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन की जो लोकेशन है वो बहुत बड़ा एरिया है, तो उस केस में हमने जो टेक्निक अडॉप्ट की है वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। अगर हमने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्टडी करना है या एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को स्टडी करना है, तो हम वहाँ पर बहुत फाइनली क्लस्टर टेक्निक्स शायद अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है, उस केस में हमारे पास थोड़ा सा रिजल्ट्स की इन्फ्रेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। दैट इज वाई वी यूज टू अडॉप्ट द क्लस्टर टेक्निक व्हेन वी आर हैविंग डिटेल्ड पॉपुलेशन। तो उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं cluster sampling. Similarly, there are some terms which are used in sampling which are the sampled population. कुछ terms हैं, कुछ terminologies हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं सैम्पलिंग के केस में। जब हम सैम्पल्स को स्टडी करते हैं तो हम मुख्तलिफ टर्म्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि सैम्पल्ड पॉपुलेशन एक टर्म है, फ्रेम एक और टर्म है, पैरामीटर एक टर्म है, स्टैटिस्टिक जो अभी हमने से पहले डिस्कस किया वो भी एक टर्म है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टर्म है। What are they? Basically, when we are talking about sampled population, तो ये वो population होती है जो कि हमने मुख्तलिफ सैम्पल से ड्रॉ की हुई होती है, और ये एक्चुअली पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्ड पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि ये वो पॉपुलेशन है जो हमने मुख्तलिफ सैम्पल्स इकट्ठे करके, मुख्तलिफ सैम्पल्स को कलेक्ट करके, इंटीग्रेट करके जमा की है, और फिर हम उस पॉपुलेशन में से कोई एक सैम्पल ड्रॉ करके उसको स्टडी करते हैं। सो बेसिकली ये जो टेक्निक है सैम्पलिंग की, इसके अंदर हम पॉपुलेशन के अंदर से या सैम्पल्ड पॉपुलेशन को हम ये वो टर्म कहते हैं कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि हमने खुद से मुख्तलिफ सैम्पल्स कलेक्ट करके इंटीग्रेट की है। सैम्पल फ्रेम ये वो लिस्ट होती है जो मैक्सिमम लिमिट शो करती है हमारे पास एक डेटा की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने टेलीफोन नंबर्स को भी स्टडी करना है, या अगर हमने टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर से टेलीफोन नंबर्स को हमने सिलेक्ट करना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टेलीफोन नंबर्स जो है वो अपीयर नहीं होते डायरेक्टरी के अंदर, या वो अपीयर नहीं कराना चाहते। तो उस केस में हमारे पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन तो शो नहीं हो रही, उस केस में हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शो हो रहे हैं, वो लोग जो कि कन्वीनियंट है अपना नंबर डायरेक्टरी में शामिल कराने के लिए। लेकिन वो तमाम लोग जो कि उस डायरेक्टरी के अंदर शामिल हैं वो सैंपल फ्रेम है। अब हमारा जो सैंपल होगा वो इस फ्रेम से बाहर नहीं निकलेगा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट से बाहर नहीं निकलेगा, वो इसी के अंदर ही कहीं पर इवॉल्व कर रहा होगा, इसी के अंदर ही कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो उस केस में जो सैंपल फ्रेम है वो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट शो करती है जहां से हमने डेटा पिक करना है, जहां से हमने सैंपल ड्रॉ करने हैं।
Parameter, characteristic of a population, for example, the total proportion of population that votes liberal in federal election. Also, mu or sigma of probability distribution are termed as parameters. Now, parameter is actually a term जो कि शो करती है specific characteristics एक population के. अब अगर हमने population characteristics को शो करना है कि इस population के अंदर कौन कौन से characteristics हैं, तो और हमने उन characteristics की basis के ऊपर कोई एक study conduct करनी है, तो वहाँ से हम बात कर सकते हैं कि ये जी sample ये एक parameter है या ये एक tool है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक को. तो पैरामीटर इज बेसिकली द टूल और इट्स द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हमने मालूम करना है टोटल एनुअल जीडीपी और एक्सपोर्ट्स, तो वहां से हमें पता लगेगा कि कितना % एक्सपोर्ट हो रहा है और जीडीपी कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है और उसमें से कितना % एक्सपोर्ट हो रहा है. तो हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर दी है अपने डेटा के ऊपर या अपने स्टडी के ऊपर, और वो स्पेसिफिक कंडीशन है वो शो करती है पैरामीटर को. या वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन जिसने which were लिबरल पॉपुलेशन जिसने अपने फेडरल इलेक्शंस में वोट किया है, या वो सब तमाम लोग जिन्होंने हमारे इलेक्शंस के अंदर फेडरल इलेक्शंस के अंदर वोटिंग की है, उनकी क्या % है, तो वो हमारा एक पैरामीटर बन जाएगा. ऑल्दो कि पॉपुलेशन तो पूरा का पूरा पाकिस्तान है, लेकिन वो लोग जिन्होंने वोट दिया है वो एक सबसेट बन जाएंगे, और वो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको ही हमने स्टडी करना है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे होंगे. तो ये जो हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर दी है पॉपुलेशन के ऊपर, जनरल पॉपुलेशन के ऊपर, वो शो करती है पॉपुलेशन का पैरामीटर. Then comes the sample statistic. The sample statistic is the numerical characteristic of a sample. For example, monthly unemployment rate or pre-election polls. Sample से पहले हमने एक numerical characteristic जो है वो sample के ऊपर अप्लाई कर दिया कि इस sample के अंदर जो कुछ भी results आएंगे वो इस limitation की basis के ऊपर होंगे. Although कि पूरी population में से वो लोग हमने study करने हैं जिन्होंने वोट दिया है, लेकिन वो लोग वोट दे सकते हैं जो कि लिटरेट है. तो अगर हमने ये एक कंडीशन और अप्लाई कर दी है कि वो सारी पॉपुलेशन जो कि वोट दे सकती है उसमें से वो लोग जो कि लिटरेट है सिर्फ वही वोट देंगे, तो इसका मतलब ये है हमने इसके ऊपर एक सैंपल स्टैटिस्टिक अप्लाई कर दिया है. ये एक ऐसा टूल अप्लाई कर दिया है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे रिजल्ट्स मजीद एक्यूरेट हो जाएंगे, मजीद फिल्टर हो जाएंगे. एंड लास्टली देयर इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन which shows the specific level of occurrence, और जो सैम्पलिंग में जो वर्सिटैलिटी होती है या जो डेंसिटी या जो स्क्यूनेस होती है या एक फ्रीक्वेंसी अगर हम आइडेंटिफाई करें कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा कितनी दफ़ा या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है एक एक्सपेरिमेंट के अंदर या एक सैम्पल के अंदर, तो उस केस में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होली सोली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेगा, लेकिन इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एक प्रीएम्बल डिस्कस कर लेते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. Now, if we are selecting a sample, तो कैपिटल N की नोशन से नोटेशन से हम शो करते हैं सैम्पल को, कि जो कैपिटल N है वो डिस्क्राइब करता है सिंबल which shows the size of population. Overall size of population is determined by N, कैपिटल N, और उसमें से जो हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं वो शो होता है स्मॉल n से, right? For example, we want to study the quality of eggs in winter season or in December. तो हमने दिसंबर के अंदर जितनी भी एग्स की पोल्ट्री की जो प्रोडक्शन हुई है उसके अंदर से हमने फॉर एग्जांपल 1000 एग्स को हमने स्टडी करना है. तो वो जो 1000 एग्स है हमारे पास वो कैपिटल N से शो होंगे बिकॉज दे ऑल आर एग्स एंड दे आर ऑल शोइंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम उन 1000 को स्टडी करने की बजाय उसमें से सैंपल ले लेते हैं 200 एग्स का, और उन 200 एग्स को हम स्टडी करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग रिजल्ट्स. तो वो जो 200 है वो हमने n पॉपुलेशन में से एक सैंपल पिक किया है. तो जो n है वो शो कर रहा होगा हमें पॉपुलेशन का साइज दैट इज 1000, और 200 जो कि हमने उसमें सैंपल सेलेक्ट किया है वो है 200, तो 200 इज द सैंपल साइज.
So therefore capital N is the symbol which describes the size of population, and small n is the symbol which is given to the size of sample or the number of elements in the sample. Then is the simple random sample. The simple random sample is a sample of size n which is selected in the manner that each possible sample of size n has the same probability of being selected. अब हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक की अगर बात की है तो बिल्कुल वही टेक्निक है जो हमने रैंडम सैम्पलिंग के अंदर यूज़ की थी कि जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास हर सैंपल को एक इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन दिया जाता है कि हर सैंपल के पर या हर एलिमेंट को एक इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा इन द सैंपल। पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हर एलिमेंट एक इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन अगर रखता है तो हम कह सकते हैं कि n is the number of sample size in which every single element has an equal opportunity of being selected. In the case of random sample of size n is equals to 1, each element has the same chance of being selected. अगर n is equals to 1 हमारे पास appear हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हर element में एक equal chance of being selection मौजूद है. Then comes the selection on the basis of random sampling. जब हमने सैंपल सेलेक्ट करना है तो हम दो मेथड्स उसमें यूज कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर। वन इज द सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड सेकंड इज द सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम सैंपल विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक लेक्चर में पहले भी हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस को डिस्कस किया था। इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैग के अंदर अगर 5 बॉल्स हैं जिसमें 3 रेड है और 2 ब्लैक है और उसमें से हम 2 बॉल्स निकालते हैं तो अगर हमने 5 में से 2 बॉल्स निकाल लिए तो हमारे पास रिमेनिंग 3 बॉल्स रह जाएंगी। ठीक है, अब हम इनिशियली अगर हमने 5 बॉल्स में से 3 बॉल्स सिलेक्ट की है या 2 बॉल्स सिलेक्ट की है अगर हमने 5 में से, तो बिफोर सिलेक्शन ईच बॉल इज हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जब हमने पहली बॉल पिक की है उसमें से बैग में से तो हमारे पास रिमेनिंग बॉल्स 4 रह गई है। हमने पिक की एक बॉल, हमने देखा कि उसका कलर जो है वो रेड है, इफ देयर एग्जिस्ट रेड एंड ब्लैक बॉल्स इन द बैग। हमने एक बॉल पिक किया, हमने देखा कि उसका कलर रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 थी। अगर हम वो बॉल वापस डाल देते हैं और फिर दूसरी बॉल सेलेक्ट करते हैं तो दूसरी बॉल सेलेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, 5 होगी। लेकिन अगर हम एक बॉल सिलेक्ट करते हैं और उसका कलर नोट करते हैं कि इसका कलर जो है वो रेड है तो हम कह देंगे जी दिस इज 1/5 और हम उसको प्लेस कर लेंगे साइड पे और हम उसको रिटर्न नहीं करते, उसको वापस नहीं भेज रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉल्स रह गई हैं अब बैग में वो 4 है। अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी हर बॉल के सिलेक्ट होने की। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड है? अगर उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं तो अगेन देयर विल बी 2/4 प्रोबेबिलिटी व्हिच इज लाइंग when we are talking about without replacement। अगर हमने विद रिप्लेसमेंट का केस डिस्कस किया है तो हमने एक चीज को या एक बॉल को या एक कार्ड को सिलेक्ट करके उसको वापस अर्न में या वापस डेक में डाल दिया है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अगर हमने एक चीज बाहर निकाली है, एक बॉल या एक कार्ड अगर हमने विड्रॉ किया है, उसको सिलेक्ट किया है, तो वी आर नॉट रिप्लेसिंग इट बैक, हम उसे वापस नहीं डाल रहे। और अगर हम उसे वापस नहीं डाल रहे तो उसका मतलब यह है कि जो रिमेनिंग है उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो चुकी है। So that is the difference. Now in case of sample with replacement, after any element randomly selected, replace it and randomly select another element. Now अगर हमने एक सैंपल जो है वो सिलेक्ट किया है, एक नंबर हमने सिलेक्ट किया है, तो दूसरा नंबर सिलेक्ट करने से पहले हम उसको रिप्लेस कर देंगे पहले वाले सिलेक्टेड बॉक्स में से। More common to sample without replacement, make sure that each element remaining in the population has the same probability of being selected। जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हर स्टेज के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है सैंपल की वो चेंज हो जाती है। यूज अ रैंडम नंबर टेबल और अ कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस और यूज अ कॉइन और डाई और बिंगो और बॉल पॉपर एटसेट्रा फॉर द पर्पज ऑफ रैंडम सैंपल। अब रैंडम सैम्पलिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं। इनके अंदर यूजुअली हम कैलकुलेटर के अंदर से भी रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से भी रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो और हमारे पास मल्टीपल चांसेस हो एक ही एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के, तो हम वहाँ से मुख्तलिफ नंबर्स को
डिस्कस कर सकते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स को पिक कर सकते हैं जो कि हमने रैंडमली उठाए हैं अपने पॉपुलेशन में से, और वो रैंडम सिलेक्शन जो है वो किसी भी बेसिस के ऊपर हो सकती है। हो सकता है कि वो साइज ऑफ 2 पे सिलेक्ट हो रहा हो, या हो सकता है वो साइज ऑफ 3 पे सिलेक्ट हो रहा हो। तो हमारे पास जो भी नंबर्स अपीयर होंगे वो या तो 1-1 होंगे, या वो 1-2 होंगे, या वो 3 के फॉर्म में होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने नंबर्स उठाए हैं रैंडमली वो या तो 1-1 से लेकर 9-9 की लिमिट में एग्जिस्ट करते होंगे, या वो 1-1-1 से लेकर 999 की सीरीज में एग्जिस्ट करते होंगे। तो इस तरह से हमारे पास अगर हमने फॉर एग्जांपल 60 ऑब्जर्वेशंस उठानी है तो हम 11 से 99 के अंदर कैलकुलेटर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर्स को in the given range. So that is on the basis of with and without replacement. Simple random sample of size 2 from a population of 4 elements without replacement. अगर हमारे पास एक population का जो size है वो 4 है, meaning 4 population elements उसमें exist करते हैं, उसमें से हमने 2 का sample select करना है कि उसमें हमने 2 numbers के combinations बनाने हैं। तो उन 2 नंबर्स की कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास n is equals to 4, capital N is equals to 4 which is describing the population size, and n is equals to 2 which is describing the sample size. So first element selected could be any one of the 4 elements. जो first element होगा, अगर हमने simple random sample technique apply करनी है तो जो very first element है वो कोई भी नंबर हो सकता है, और जब हमने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लिया तो बाकी के 3 नंबर्स पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए सिलेक्ट कर लिया तो पीछे 3 नंबर रह जाएंगे, बी, सी और डी, उनके साथ हमने उसके सैंपल्स बनाने हैं। मीनिंग ए का सैंपल ए के साथ नहीं बनेगा बल्कि ए का सैंपल बी के साथ बनेगा, ए बी, ए सी एंड ए डी बनेगा। सिमिलरली अगर हमने बी को पिक किया है तो उसके सैंपल बी के साथ नहीं बनेंगे बल्कि बाकी सबके साथ बनेंगे, विच इज बी ए, बी सी, बी डी। सिमिलरली जब हम सी को पिक करेंगे तो हमारे पास सी ए, सी बी, सी डी के सैंपल्स बनेंगे। तो हर नंबर के साथ हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, राइट। हम अगर ए के को हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे विच इज बी, सी एंड डी, क्योंकि हमने ए को ए के साथ स्टडी नहीं करना, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। अगर हम विद रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम ए को ए के साथ भी स्टडी करेंगे विच माइट इंक्लूड 2 मोर एलिमेंट्स, ए बी, ए सी, ए डी, देन ए बी, देन बी ए, बी बी, बी सी, बी डी। लेकिन हम क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और हमने ए को जब विड्रॉ कर लिया है तो हम उसको वापस नहीं रख रहे, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 3 कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं विच आर ए बी, ए सी एंड ए डी। सिमिलरली जब हमने बी को पिक किया है तो हमारे पास रिमेनिंग ए, सी और डी बच गए हैं, तो ए, सी और डी के साथ बी के कॉम्बिनेशंस बाकी बनेंगे विच आर बी ए, बी सी एंड बी डी। सिमिलरली जब हमने सी पिक किया है और डी पिक किया है तो हमारे कॉम्बिनेशन सी और डी के साथ आपस में नहीं बनेंगे बल्कि ए, बी और डी और बी सी, बी ए, बी और सी के साथ बनेंगे which shows the similar number of chances of which shows the similar number of samples जो कि हमने इस तरह से क्रिएट किए। एक नंबर के साथ 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं तो 4 नंबर्स के साथ 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे which are given in the example। यहाँ से हम अगर सिंपल परम्यूटेशन का जो कि अरेंजमेंट बेस्ड कॉम्बिनेशन का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें विच इज n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल ओवर कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। परम्यूटेशंस हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर या एक स्पेसिफिक सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो डेटा के अंदर, और यहाँ पर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की है तो इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक सिमेट्री के अंदर ही हम डेटा को डिस्कस कर रहे हैं विच इज 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल। तो 12 हमारे पास पॉसिबिलिटीज है सैंपल्स की। In order of selection does not matter, that is we are interested only in what elements are selected, then this reduces to 6 combination। अगर हमने if you are selecting on the matter that we are interested only in what elements are selected, तो हमारे पास जो samples है वो reduce हो जाएंगे 6 के अंदर। If AB is AB not BA, meaning अगर हमारे पास जो repetition है वो ना आए, यानी कि अगर हमारे पास AB exist करता है तो BA ना हो, यानी कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है तो एक ग्रीन और ब्लैक बॉल भी एक सिमिलर रिजल्ट ही दे रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने एक और मजीद उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई की है, और वो कंडीशन ये है कि हमारे पास रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए
उन्हीं नंबर्स की, यानी कि 1 2 या 2 1 is giving the same result, so we are not interested in that. So we will be talking about AB, AC, AD, BC, BD, and similarly CD and DB. So these are the results in which we will be interested in knowing. जिसके अंदर repetition ना हो तो उस केस में हमारे पास 6 आउटकम्स आए हैं, यानी कि A के आउटकम्स C और D के साथ और B के आउटकम्स C और D के साथ, सिमिलरली C का आउटकम D के साथ। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशंस आए। यहाँ पर हमने इंस्टेड ऑफ परम्यूटेशन हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, which is capital N C small n, which is equals to capital N factorial over n factorial into n minus n factorial, जहाँ पर हम number of observations में in the specific order interested हो वहाँ पर हम combinations अप्लाई करते हैं। ये एक और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये सिटीज या ये सॉरी कंपनीज जो है ये अपेयर हो रही है अमेरिका के अंदर, ये 18 कंपनीज हैं जो हमने 200 की लिस्ट में से पिक की है। तो यहाँ पर अगर हमने सैंपल बनाना हो सिंपल रैंडम टेक्निक की बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर हम हर कंपनी को एक नंबर असाइन कर देंगे और उस नंबर की बेसिस के ऊपर हम दो दो के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सिंस 18 केसेस ऑफ 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड एंड इन ऑर्डर ऑफ दीज हम यहाँ से कैलकुलेटर की बेसिस के ऊपर या कंप्यूटर से एक नंबर प्रेस करते जाएंगे जो कि हमें रैंडम नंबर शो कर रहा है। पहला नंबर लाइक फॉर एग्जांपल 7 1 शो कर रहा है, तो हमने 7 और 1 कंपनी जो है वो पिक कर ली है। सिमिलरली 7 4 शो कर रहा है तो हमने 7 और 4 कंपनी पिक कर ली है। 4 5 शो कर रहा है तो हमने 4 और 5 कंपनीज पिक कर ली है। तो इन दैट केस आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ 200 हमने एक सैंपल ड्रॉ किया है जिसके अंदर हम इन ऑर्डर ऑफ 2 साइज के ऊपर हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ से हमने एक ट्रैक बना लिया है पूरी की पूरी कंपनीज का कि वो कौन सी कंपनी सिलेक्ट होंगी जो कि रैंडम बेसिस के ऊपर होंगी, उसके ऊपर हमने कोई स्पेसिफिक टेक्निक अप्लाई नहीं की। Similarly, we can also use the simple Excel sheet for the purpose of generating the random samples, जो कि जिसका एक फार्मूला है कि अगर हमने पूरा का पूरा हमारे पास डेटा मौजूद है तो उसके अंदर हम इज इक्वल्स टू रैंड और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसको एंटर दबाएंगे तो हमारे पास उसके अंदर से रैंडम सिलेक्शन आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स जो कि अपीयर हो जाएंगे किसी एक कलर्स के फॉर्म में और वो शो कर रहे होंगे डेटा जो कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन होगा और इसको हम मजीद उसके ऊपर हम एक्सेल के टूल्स और भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सिलेक्शन कि अगर हमने रैंडमली एक डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम पूरा का पूरा डेटा एक्सेल शीट के अंदर डालें और उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करके फार्मूला डाल दें विच इज इक्वल्स टू आर AND रैंड और स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, स्टार्ट एंड क्लोज कर दें और इसको प्रेस करें तो हमारे पास डेटा जो है वो रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। Okay, then we need to talk about sampling from a process. Now it may be difficult or impossible or to obtain or construct a frame. तो अगर हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रेम डिस्क्राइब नहीं हुआ हुआ जो एक लिमिट शो करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जहाँ से हमने सैंपल पिक करना है, तो उस केस में हमारे पास क्योंकि लार्जर और पोटेंशियली इन्फिनिट पॉपुलेशन होती है लाइक साइज ऑफ फिश, ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या कंटिन्यूस प्रोसेसेस होते हैं जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और अदर लिक्विड्स, ट्रांसपोर्टिंग कमोडिटीज टू अ वेयर हाउस, तो उस केस में रैंडम सैंपल इज वन वेयर एनी एलिमेंट सिलेक्टेड इन द सैंपल। रैंडम सैंपल वो सैंपल होगा जो कोई भी एलिमेंट शो कर रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर से। If selected independently of any other element, it follows the same probability distribution as the elements in the population. अगर ये select होता है independently, तो ये it will follow the same probability distribution which is there in the population. Careful design for the sample is especially important. And sample production of milk at random times will be can be taken and forest products अगर हम उठाने हैं तो randomly selected clusters from maps or previous surveys of trees या उनके साइज की बेसिस के ऊपर हम उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन ये एक टूल है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का
जिसके अंदर हम मीन विच इज म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा को स्टडी करते हैं पॉपुलेशन मीन और म्यू के साथ सैंपल मीन को स्टडी करते हैं और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक. The proportion is the frequency of occurrence of a characteristic divided by the total number of elements. The proportion of elements of a population that take on the characteristic is P, and the proportion of the elements is the sample selected with this same characteristic is P head. एक सिंपल सी एग्जाम्पल जो कि या एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर मुझे प्रोपोर्शन की देनी है वो ये है कि हम यूजुअली यूज करते हैं वर्ड रेशो. When you talk about ratio, the ratio is a word or ratio is something which is taken from two independent events. या जैसे हम बात करते हैं कि रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द गिवन सेट ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मतलब ये है कि जो मेल नंबर है और जो फीमेल नंबर है दे आर इंडिपेंडेंटली लाइंग इन द पॉपुलेशन. लेकिन जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द पॉपुलेशन. तो जो भी रेशो हमारे पास, रेशो से हमारे पास जो भी एक गिवन लिमिट शो हो जाएगी उसके अंदर से अगर हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन होगी. पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो हमें पी हेड के बारे में डिटेल्स देता है. वेयर मीन जो पैरामीटर्स है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के वो है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन. प्रोपोर्शन इज शोन बाय स्मॉल p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर शोन बाय द पॉपुलेशन साइज व्हिच इज कैपिटल N. जब हम इसको सैंपल के अंदर डालेंगे या पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर डालेंगे तो म्यू इज एक्चुअली द x bar, sigma is actually the small s which shows the standard deviation, p is the p head which shows the proportion, that what is the proportion of one single element lying in it, and n is the number of observations on which we are conducting the study. जब हम सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं तो हम डेविएशन ले लेते हैं x bar माइनस म्यू की, जो कि पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक से का एक डेविएशन है, जहाँ से हमें एक डेविएटेड फिगर यानी कि अगर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कोई भी है तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा की अगर वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव शो हो रही है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे. सिमिलरली पॉपुलेशन पी की वैल्यू, प्रोपोर्शन और पी स्टैटिक की वैल्यू जो भी है हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. एस्टिमेशन के उसमें कॉन्सेप्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. वन इज द पैरामीटर्स. द पैरामीटर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और मोर स्पेसिफिकली अ टारगेट पॉपुलेशन. The parameters may also be terms as population or proportion values. Parameters को हम population values भी कहते हैं. A statistic is also referred to as a sample statistic, or when estimating a parameter, a point estimator of a parameter, we can describe कि statistics जो है वो sample statistic को show करता है और parameter जो है वो population characteristic को show करता है. Point estimate, a specific value of a point estimator is referred to as a point estimate of a parameter. जो भी value आती है हमारी point estimator की वो refer करती है उस parameter का point estimate. जो भी parameter है mu है या standard deviation है उसका point estimate show करती है. Sampling error is the difference between the point estimate, which is the value of estimator, and the value of the parameter. तो sampling error हमने जो deviation की बात की है वो difference बताती है हमें point estimate का with that of the parameter. This is the error caused by sampling only a subset of element of a population rather than all elements in the population. A researcher hopes to minimize the sampling error, but all samples have some such error associated with it. हर sample के अंदर कुछ ना कुछ errors होते हैं, and that is why we used to take sampling error, which is the deviation, which is the difference between point estimator and the value of parameter. ये एक शो कर रहा है फिगर जो कि आपको जनरली एक प्रोविंस के अंदर से हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसके अंदर कितने लोगों ने वोट दिया उसका हमने मीन, वेरिएंस और सैंपल साइज डिटरमिन किया और यहाँ से हमने उसका डेविएशन लेकर उसका सैंपल एरर भी डिटरमिन किया. अगर हम इस एग्जाम्पल को फॉलो करें तो हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट शो हुए इलेक्शंस के वो लास्ट 2 कॉलम्स में हुए हैं विद द सेकंड लास्ट कॉलम गिविंग द पैरामीटर फॉर द पॉपुलेशन. अगर आप ये वाला जो इलेक्शन रिजल्ट्स का कॉलम देखें विच इज पी, तो दिस शोज द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन विच आर आइडेंटिफाइड बाय पी.
at these percentages rather than proportions, so we have labeled them through uppercase of P. The second and third columns provide statistics on point estimators. ये हमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है वो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं पॉइंट एस्टिमेटर्स पी के पी हेड की फॉर्म में डिफरेंट पोल्स पे, और दोनों पार्टीज के दरमियान में जितना भी डिफरेंस आया है रिजल्ट्स का वो शो हो रहा है सैम्पलिंग एरर में. Now we switch towards the sampling distribution. Here we'll be just talking about the introduction of sampling distribution, and then we'll be discussing sample distribution in detail in our next lecture. A sampling distribution is the probability distribution for all possible values of sample statistic. Each sample contains different elements, so the value of the sample statistic differ for each sample selected. These statistics provide different estimates of the parameters. The sampling distribution describes how these different values are distributed. For the most part, we will work with the sampling distribution of the sample mean. With the sampling distribution of x bar, we can make probability statements about how close the sample mean is to the population mu. Meaning the sample distribution describes a figure that what is the combination of, or what is the likelihood of appearing mu with that of x bar. That if you are talking about the population mean, तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के अंदर एक क्या सिमेट्री है, वो कितना आपस में कितना क्लोज है. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज डिस्क्राइब्ड थ्रू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. Alternatively, it provides a way of determining probability of various levels of sampling error. जब भी हम sampling errors की बात करते हैं और उनके reduction की बात करते हैं, तो that is something which is covered under sampling distributions as well. Sampling distribution of the sample mean is something which helps the researcher to determine the sampling distribution of the sample mean, which is x bar. The researcher hopes that the mean of the sampling distribution will be mu, and the mean of population, which is x bar. So if this occurs in combination which is closer to each other, this shows an unbiased result. अगर हमारा population mean और sample mean similar results show कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास biasness comparatively कम है, which is shown through a formula of expected value of x bar, which is equals to mu. यही वाली चीज़ हम अप्लाई करते हैं वेरिएंस की कैलकुलेशन में भी, कि अगर हमारे पास सैम्पल वेरिएंस और सैम्पल और पॉपुलेशन वेरिएंस के अंदर डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा इज कंपैरेटिवली लेसर, which is in repeated number of samples, which shows that the repeated number of samples are unbiased in nature. Sampling distribution with the sample mean when random sampling is conducted. So in simple random sample, when it is drawn normally from a normal distributed population, sample distribution of x bar will also show a similar figure, which is equivalent to x bar. Then the mean of the distribution of x bar is mu, which is population mean. The sample size n is reasonably small proportion of the population size. Then the standard deviation of x bar in the population, standard deviation sigma, divides the square root of the sample size. That is samples samples that contains 5% of the population elements are the finite population with the correction factor, which is not required since it does not alter results much. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल के ऊपर हमने की टेक्निक के ऊपर हमने सिलेक्शन की भी हो, तो वहां से हमारे पास x बार और म्यू कंपैरेटिवली सिमिलर रिजल्ट्स शो करते हैं, जो कि अनबायस्ड डेटा को एनालाइज करा रहे हैं. यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे दी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं, और सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इफ इट इज रैंडम तो स्मॉल n से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. मीन दोनों के केस में म्यू होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सिग्मा होती है, और सिंपल रैंडम के केस में सिग्मा x, which is sigma over under root n, इससे डिस्क्राइब होती है. Just have an introduction of central limit theorem, which is afterwards discussed in detail. The sampling distribution of sample mean x bar is approximated by a normal distribution when sample is a simple random sample and sample size n is large. अगर हमारे पास n बहुत large है, तो फिर हम mean हमें exactly right distribution show नहीं करता, तो उस केस पे हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं.
The mean of sampling distribution is the population mean mu, and the standard deviation of sampling distribution is the population standard deviation sigma, which divides the square root of the sample size, which is sigma over under root n. The latter is referred as the standard error of the mean. The sample size of 100 or more elements is generally considered sufficient to permit using the central limit theorem if the population from which the sample is drawn is symmetrically distributed, where n is greater than 30 may be sufficient to use central limit theorem. जहाँ पर हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है और हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते मीन को, जो कि हमें राइट एनालिसिस दे रहा हो, तो वहाँ पर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं. Like for example, in 192 random samples from population that is not normally distributed, sample size of n is equals to 50 for each of the random samples will not describe the right example, so will not describe the right analysis. So in that case we will apply the central limit theorem. This example we will be discussing in next lecture. So today we have talked about the sampling techniques. What are the sample? We have analyzed that what is the probability and non-probability sample, and we have also talked about the point estimators and the central limit theorem as well. So in next lecture we will be talking about in detail that what actually sampling distribution is and how we can apply the central limit theorem, and we will discuss it through multiple examples. Thank you very much for this time.